Hello students, welcome to all. My name is Deepmala Ramcharan and today we will start NCERT class 9 Civics chapter 1st. What is democracy? Why democracy? Part 2. In this lecture video, we will discuss about features of democracy. So, let's start. फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की विशेषताएं. We have started with a simple definition that democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. हमने इस सरल परिभाषा के साथ शुरुआत की है कि लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है. This raises many questions. इससे अनेक सवाल उठ खड़े होते हैं. First question is, who are the rulers in this definition? इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है? Which officials must be elected for any government to be called a democracy? Which decision may be taken by non-elected officials in a democracy? किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारियों का चुना हुआ होना आवश्यक है? लोकतंत्र में वे कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं? Which kind of election constitutes a democratic election? किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं? What conditions must be fulfilled for an election to be considered democratic? किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जाना जरूरी है? Who are the people who can elect the rulers or get elected as rulers? कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं या खुद शासक चुने जा सकते हैं? Should this include every citizen on an equal basis? Can a democracy deny some citizens this right? क्या इसमें प्रत्येक नागरिक को बराबरी का अधिकार मिलना जरूरी है? क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित रख सकती है? Finally, what kind of a form of government is democracy? Can elected rulers do whatever they want in democracy, or must a democratic government function with some limits? It is necessary for a democracy to respect some rights of citizens. सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे? क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं या लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाओं यानी सीमाओं में रहकर काम करना जरूरी है? क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नागरिकों के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए? Let's consider each of these questions with the help of some examples. आइए कुछ उदाहरणों के साथ इन पर बारी बारी से विचार करें. Major decisions by elected leaders. प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ. In Pakistan, General Pervez Musharraf led a military coup in October 1999. पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की. He overthrew
a democratically elected government and declared himself the chief executive of country. परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को मुख्य कार्यकारी अधिकारी घोषित किया. Later, he changed his designation to president and in 2002 held a referendum in the country that granted him a 5-year extension. बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया और 2002 में एक जनमत संग्रह कराकर अपना कार्यकाल 5 वर्ष के लिए बढ़वा लिया. Pakistani media, human rights organization and democracy activists said that the referendum was based on malpractices and fraud. पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि यह जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई हैं. In August 2002, he issued a legal framework order that amended the Constitution of Pakistan. अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला. According to this order, the president can dismiss the national and provincial assemblies. इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता था. The work of the civilian cabinet is supervised by National Security Council, which is dominated by military officers. मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती थी, जिसके ज्यादातर सदस्य मिलिट्री ऑफिसर्स यानी आर्मी ऑफिसर्स होते थे. After passing this law, elections were held to the national and provincial assemblies. So Pakistan has had elected representatives have some power, but the final power rested with military officers and General Musharraf himself. इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों, ठीक है, यानी नेशनल और स्टेट असेंबलियों या प्रोविंशियल असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए. इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए, चुने हुए प्रतिनिधियों को अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता अभी भी सेना के अधिकारियों और जनरल परवेज मुशर्रफ के पास ही थी. Clearly, there are many reasons why Pakistan under General Musharraf should not be called a democracy. स्पष्ट है कि जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र न कहने के अनेक ठोस कारण हैं. But let's focus on one of these. लेकिन यहां सिर्फ एक कारण पर ही चर्चा करते हैं. Can we say that the rulers are elected by the people in Pakistan? Not quite. क्या हम यह कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया है? हम ऐसा नहीं कह सकते. People may have elected their representatives to the national
and provincial assemblies, but those elected representatives were not really the rulers. लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया, लेकिन चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं थे। They can't take the final decision. वे अंतिम फैसला नहीं ले सकते थे। The power to take final decision rested with army official and with Parvez Musharraf, and none of them were elected by people. वहां पर अंतिम फैसला लेने का अधिकार अधिकारियों और जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथों में ही था, जो जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। This happens in many dictatorships and monarchies. They formally have an elected parliament and government, but the real power is with those who are not elected. ऐसा तानाशाही और राजशाही वाली अनेक शासन व्यवस्थाओं में होता है। वहां औपचारिक रूप से चुनी हुई संसद और सरकार तो होती है, पर असली सत्ता, मेन पावर उन लोगों के हाथ में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती। In a few countries, the real power was with some external powers and not with locally elected representatives. This cannot be called people's rule. कुछ देशों में असली ताकत विदेश शक्तियों के हाथों में होती है। इसे लोगों का शासन या डेमोक्रेसी नहीं कहा जा सकता। This gives us the first feature. इसे हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुंचते हैं। In a democracy, the final decision making power must rest with those elected by people. अर्थात लोकतंत्र शासन व्यवस्था वही है जिसमें निर्णय लेने की अंतिम शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट फीचर हो गया कि लोकतंत्र में जरूरी है कि जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास ही हो। ऐसे देश जहां पर स्टेट और प्रोविंशियल इलेक्शंस होते हैं, जनता द्वारा रिप्रेजेंटेटिव चुने भी जाते हैं, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो आज भी मोनार्की के पास है, राजतंत्र के पास है, उसको हम डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। नाउ कल अगले लेक्चर वीडियो में हम फिर से अगले फीचर्स पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।